हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। अभी हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था और अभी हम फोर्थ यूनिट का उसका थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। और थर्ड चैप्टर है सर रोजर एट द चर्च, जोसेफ एडिसन। अबाउट द ऑथर के बारे में पढ़ते हैं। जोसेफ एडिसन वॉज बॉर्न इन 1672। हिज फादर लैंकलॉट एडिसन 1632 to 1703 was a scholarly English clergyman. Edison was educated at Embassy, Lichfield, Charterhouse School in London, Queen's College and Magdalen of Oxford in 1693. He began his literary career with a poetic address to Dryden and won his instant favor. Next year appeared his account of the greatest English poets. Through Charles Montaigne, Earl of Halifax, he obtained in 1699 a pension of $300, dollar नहीं है, and spent 4 years in France, Italy, Australia, Germany and Holland. The death of King William and loss of power by the Whigs stopped Edison's pension and forced him to return home. For some time he lived in poverty and obscurity. Then his poem The Campaign, celebrating the English victory in the Battle of Blenheim, took the country by storm and secured for him a commissionership of exercise. The rest of Edison's life was divided between political duties and literature while secretary to the Earl of Sunderland, and he produced his opera Rosamund 1706 in 1707. He attended Lord Halifax to Hanover in 1708 to 11. He was secretary to Lord Wharton, Lord Lieutenant of Ireland, and here he formed a warm friendship with Swift. Elected to Parliament from Malmesbury, he kept the seat for life. Edison's essay for the Tatler and the Spectator, which we still carries, were written between 1709 and 1714, but the won more literary fame by his classic tragedy Cato, which we have almost forgotten. The play kept the stage for 35 nights. After the accession of George I and he became once more for about a year secretary to the Earl of Sunderland as Lord Lieutenant of Ireland. He also wrote his comedy of The Drummer, which was acted at Drury Lane, but it could not attain success. In 1716, Edison married a widow, the Counts of Warwick, and went to live at her home, the famous Holland House. His married life lasted only 3 years and was probably a not happy one. Certainly, he never wrote of women except with a gentle satire, and he became more and more a clubman, spending most of his time in these clubs and coffee house of London. Up to this time, Edison's life had been singularly peaceful, but his last year were made unhappy by quarrels first with Pope, then with Swift, and finally with his lifelong friend Still. The first quarrel was largely the result of Pope's jealousy. The other quarrels with Swift and Still were the unfortunate result of political differences. A sufferer from asthma and then dropsy, he died at the Holland House on 17 June 1719. As a light essayist, he has no equal in English literature. In The Spectator of the foundation of all that is sound and healthy in modern English, thought may be traced. Edison criticism does not aim as being profound, but is distinguished for its sobriety and good sense. His prose style reflects the grace and subtlety of his humor. जोसेफ एडिसन का जन्म 1672 में हुआ था। उनके पिता लॉन्सलॉट एडिसन 1632 से 1703 एक विद्वान अंग्रेज पादरी थे। एडिसन की शिक्षा एम्बेसडर लिचफील्ड व चार्टर हाउस स्कूल लंदन में था। क्वींस कॉलेज व मैकडॉलिन ऑक्सफोर्ड में हुई थी। 1693 में ड्राइडन के लिए एक काव्यात्मक संबोधन से उसने अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ किया व तुरंत उसका स्नेह जीता। अगले वर्ष उसकी अकाउंट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स नामक रचना प्रकाशित हुई। अर्ल ऑफ हैलिफैक्स चार्ल्स मॉन्टेगन की सहायता से 1699 में उन्होंने 300 पाउंड की पेंशन प्राप्त की तथा फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी व हॉलैंड के 4 वर्ष व्यतीत किए। किंग विलियम की मृत्यु, विक्स की सत्ता से हटने के कारण एडिसन की पेंशन बंद हो गई व उसे घर लौटने को मजबूर होना पड़ा। कुछ समय तक वह निर्धनता व गुमनामी की स्थिति में रहा। फिर उसकी कविता द कैंपेन, जो ब्लेमेन के
ब्लेनहेम के युद्ध पर आधारित थी, ने देश में तूफान ला दिया। इसकी सफलता स्वरूप उसे कमिश्नरशिप ऑफ एक्सरसाइज प्राप्त की। एडिसन का शेष जीवन राजनीति व साहित्य के क्रियाकलापों में व्यतीत होता रहा। अर्ल ऑफ संडरलैंड के सचिव के रूप में उसने 1706 में रोजामैंड ओपेरा प्रस्तुत किया। 1707 में वह लॉर्ड हॉलीफैक्स के साथ हनोवर गया। 1708 और 11 के मध्य वह आयरलैंड के लेफ्टिनेंट लॉर्ड वॉर्टन का सचिव बना। इसी दौरान उसकी स्विफ्ट से घनिष्ठ मित्रता हुई। वह मॉलसबरी से पार्लियामेंट के लिए चुना गया तथा इस क्षेत्र में वह सदैव चुना जाता रहा। द टर्टल द स्पेक्टर के लिए एडिसन के निबंध, जिन्हें हम सभी अभी याद करते हैं, 1709 और 1714 के मध्य लिखे गए, परंतु उसने अपनी कालजयी दुखांत कृति कैटो के लिए अधिक यश अर्जित किया तो अब भुला दी गई है। यह नाटक 35 रात तक मंचित होता रहा। जॉर्ज प्रथम की सत्ता प्राप्त करने के बाद एक बार फिर एडिसन 1 वर्ष के लिए अर्ल ऑफ सुंडरलैंड का सचिव बन गया। उसने द ड्रमर नामक कॉमेडी भी लिखी, जिसे ड्ररी लेन में अभिमंचित किया गया, परंतु इसे सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। 1716 में एडिसन ने एक विधवा काउंटेस ऑफ वॉरविक से विवाह कर लिया तथा उसके साथ प्रसिद्ध हॉलैंड हाउस में रहने चला गया। उसका वैवाहिक जीवन केवल 3 वर्ष चला। शायद वह सुखी नहीं रहा। निश्चित ही उसने हल्के बैंक के अतिरिक्त महिला पर कभी नहीं लिखा। वह अपना अधिकांश समय क्लबों और लंदन के कॉफ़ी हाउसों में व्यतीत करने लगा। अब तक एडिसन का जीवन पूर्ण रूप से शांत था, परंतु उसके जीवन में अंतिम वर्ष झगड़ों के कारण दुख में बीते हैं। पहले उसने पॉप से, फिर स्विफ्ट से और अंत में उसने जीवन भर के मित्र स्टील से झगड़ा कर लिया। पोप से झगड़ा मुख्यतः पोप की ईर्ष्या के कारण हुआ। स्विफ्ट व स्टील के झगड़े राजनीतिक मतभेदों के कारण हुए। पहले दमा, फिर जलोदर का ड्रॉस्पी का रोगी होने के कारण एडिसन की 17 जून 1719 को हॉलैंड हाउस में मृत्यु हो गई। अनुप्राणित करने वाले एक निबंधकार के रूप में एडिसन का कोई समकक्ष नहीं है। आधुनिक अंग्रेजी विचारधारा में जो स्वस्थ अच्छा है उसका आधार द स्पेक्टेटर में देखा जा सकता है। एडिसन की आलोचना में गहराई नहीं है, परंतु संयम व समझदारी उसकी विशेषताएं हैं। उसकी गद्य शैली में उसके हास्य की शिष्टता व विलक्षणता प्रतिबिंब होती है। समरी ऑफ द ऐसे पढ़ते हैं। Sunday is always pleasant for Addison. If it is spent in countryside, Sunday is an important day in countryside. People come to pray in church in their best garments. Whole village meet together with their pleasant faces. There they join together in adoration of the Supreme Being. Sunday cleans away the rust of the whole week. The parish politics is discussed in that place, either after sermon or before the bell rings. Sir Roger is a man of religious feelings. He is landlord to the whole congregation, and he feels his duty to keep the environment of the church pleasant by keeping them in good order. He never allows any person to sleep in beside himself. By chance he goes into a short nap at sermon and then stands up and looks about. If he sees anybody else nodding, he wakes them himself or send his servant to arise them. He himself sings psalm, यहाँ पे silent है, psalm. He even count the number of member and see if any of his tenants is missing. All people feel that Sir Roger bears a general good sense and worthiness of character. No one is allowed to displace till Sir Roger is gone out of the church. एडिसन के लिए रविवार का दिन सदैव सुखदायक होता है यदि यह ग्रामीण अंचल में व्यतीत किया जाए। ग्रामीण अंचल में रविवार का विशेष महत्व होता है। अपनी विशिष्ट पोशाकों में लोग इस दिन गिरजाघर पहुंचते हैं। प्रसन्नचित्त चेहरों के साथ लोग आपस में मिलते हैं। वहां वे परमेश्वर के सम्मान में सामूहिक रूप से एकत्रित होते हैं। पूरे सप्ताह की थकावट को रविवार का दिन दूर कर देता है। गिरजाघर की राजनीति पर भी यहाँ चर्चा होती है। ऐसा धार्मिक प्रवचन के बाद होता है या फिर चर्चा की घंटी बजने से पहले ही हो जाती है। सर रोजर धार्मिक प्रकृति का व्यक्ति है। वो पूरे समागम का मालिक है और गिरजाघर के वातावरण को सुखदायक बनाना वह अपना कर्तव्य समझता है। तो वो जहाँ पे रहते थे, वो उनका जो जहाँ पे गिरजाघर था और वहाँ पे जितने भी एरिया में लोग रह रहे थे वो सारा किनका था? सर रोजर का था। और गिरजाघर के वातावरण को क्या करते, ये सुखदायक बनाना वो अपना कर्तव्य समझते थे। इसके लिए वह सब कुछ व्यवस्थित रूप में रखता है। वह किसी भी व्यक्ति को वहाँ पर झपकी नहीं लेने देता है। इस नियम से वह स्वयं को अलग रखता है। यदि कभी वह प्रवचन के दौरान झपकी लेने लगता है तो वह उठकर देखता है कि कोई अन्य व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर रहा।
ऐसा होने पर वह स्वयं ऐसे लोगों को जगा देता है अथवा अपने कर्मचारियों से ऐसा करने को कहता है। वह स्वयं भजन भी गाता है। वह सदस्यों की गिनती कर देखता है कि कोई उनमें से गायब तो नहीं है। सभी लोग महसूस करते हैं कि सर रोजर की समझ अच्छी है, वह अच्छे चरित्र का प्रतिनिधित्व करता है। जब तक सर रोजर गिरजाघर से बाहर नहीं चला जाता तब तक किसी को भी वहाँ से जाने की अनुमति नहीं होती है।